Hello students, this is Reena Karalkar. I am representing BrightGen Education. Today we will going to learn about OCM, that is Organization of Commerce and Management. It is an important subject. In this subject total we have 8 chapters. So in this we will going to focus on modern management. Now this modern management concept has been given by Henry Fayol. Basically Henry Fayol जो है उसे हम बोलते हैं father of मॉडर्न मैनेजमेंट. यहाँ पर हम उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स इन दिस 14 प्रिंसिपल्स. नाउ हियर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू क्लियर यू अबाउट दैट दिस क्वेश्चन विल गोइंग टू कम फॉर आइदर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स. नाउ इफ यू आर राइटिंग फॉर 4 to 5 मार्क्स के लिए, so you only have to write down 4 to 5 points and the specific questions will be there कि आपको write any 4 features या any 4 principles of management. So that time you have to only focus on any 4 principle. Let's start with the first point, that is principles of division of work. Now here division of work is encompasses that all the work should not be given to one employee. What do you mean by this? हम किसी एक ही एम्प्लॉय के ऊपर पूरा काम का बोझ नहीं डाल सकते हैं. We have to divide the work among the employees as we have 2 to 3 employees in a particular firm. तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही एम्प्लॉय के ऊपर सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज या सारा काम हमें नहीं देना है. हमें यहाँ पर काम को डिवाइड करना है among the employees so that जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका फोकस उसके वो पर्टिकुलर काम पे रहेगा. नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. इफ अ स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट इज डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क. नाउ हियर इट इज अ ग्रुप प्रोजेक्ट. यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा. वो इस तरीके से होगा जैसे कि पहले किसी स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया है. ही विल गोइंग टू राइट अबाउट इंट्रोडक्शन. The other student will going to write about aims and objectives. The other will going to focus on the main content of the project and the other will be going to focus on the conclusion part. Now here if you are giving all the responsibilities to only one student, maybe he will get distracted, maybe he will get fatigued, maybe he will be in stress. So accordingly we have to divide the work among the employees also. Those who are good in a particular thing, we have to give them that particular work. Say for example, if an employee has done MBA in marketing, so to that person we have to give marketing work. If we are giving them marketing, financing, accounting work, he might get confused and he might be not able to give his 100%. So here in this way we have to divide the work among the employees in the organization. Let's concentrate on second point, that is principles of discipline. Now discipline and student, they are interrelated and student have to behave in a disciplined manner. ये आपको ज़्यादा ही अच्छे से पता रहेगा. Now in management what discipline does? Discipline in management is nothing but you have to do all the activities in a disciplined manner. अगर आप डिसिप्लिन में रहकर काम करोगे, it will give surety कि आप आपका काम right time पे right तरीके से कर सकते हो. But if you are not in a disciplined manner, if you are not doing any work in a disciplined manner, तो यहाँ पर chances हो सकता है कि आप आपका काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे या फिर आप आपके काम में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर सकते हो. Now let's focus on the third principle, that is principle of unity of direction. Now what do you mean by direction? Direction is nothing but showing the path of action. Now here manager जो है वो एक important role play कर रहा है कि वो कैसे अपने employees को directions provide करेगा, way of action बताएगा कि employee को exactly क्या काम कब और कैसे करना है. Now let's focus on unity of command. Command is nothing but giving order. Now obviously order will come from top level management. I mean it goes through hierarchy. Now manager will give command to their employees to do a particular work, how to do that particular work. Now here
all the employees in an organization has to follow the command given by the manager. अगर आपने मैनेजर के कमांड को फॉलो किया है, it will give you 100% श्योरिटी दैट आपका जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही एफिशिएंटली कंप्लीट होगा. Now let's focus on the fifth principle, that is principle of authority and responsibility. Now students, here someone is having misconception about authority and responsibility. बहुत सारे लोगों को लगता है that we are in an authoritative power position, हमारे ऊपर कोई responsibility नहीं है. But always remember, authority comes with responsibility. These both goes hand in hand. यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपके ऊपर किसी काम की अथॉरिटी दी गई है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट वर्क. यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इफ़ यू आर हैविंग एनी अथॉरिटी अबाउट अ पर्टिकुलर वर्क, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क. अगर आपको कोई काम का अथॉरिटी दिया है 14-15 डेज में यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. ये आपकी ही जवाबदारी होगी कि आपको वो काम 10 से 15 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा. The next is principles of remuneration. Remuneration is nothing but something in consideration or something in return. Here the organization will decide the salary or the wages of the employees as per their educational qualification, as per their experience. Now here the remuneration will be deciding as per the designated which employee is holding. अगर आपका employee या फिर if a person is at manager level, तो obviously उसका salary will be more as compared to other employees, and the employees who are working at supervisory level or at operational level, तो उनका salary will be little bit low as per their experience and knowledge. Okay student, in this question we have total 14 principles, but as I have told you that this question will not going to come for long answer question. ये जो question है ये either आपको 4 मार्क या 5 मार्क के लिए आने वाला है. So for 4 to 5 marks, all these 6 points are enough, and these 6 points are actually easy to understand and you will find it very easy to write the explanation. Principles of scientific management. Now student, in the last lecture we have completed principles of modern management. There is a difference between scientific management and modern management. Scientific management का जो principles है वो provide किया है F.W. Taylor ने, and he is considered as father of scientific management. Okay students, let's focus on the first principle, that is science not rule of thumb. Now here the manager has to give techniques to the employees कि employee को कौन सा काम किस तरीके से करना है. Basically ये जो techniques है ये बनाए गए हैं with the help of practicals, and उसके basis पर ही employees को काम करना है. First of all, अगर हमने हेनरी फियोल के प्रिंसिपल को फोकस किया तो वहाँ पर बहुत सारे जगह पर मैनेजर अपना पर्सनल जजमेंट यूज़ करता है, बट यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को while performing a particular task they have to strictly follow the scientific techniques. Now let's focus on the second principle, that is harmony not discord. Now here this is something very tricky terminology, that what is harmony and what is not discord. Here the simple logic is that there should be a peaceful relationship between employees and the management. एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट का बारे में सोचना है एंड मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना है. इन दिस वे वो दोनों अपना एक दूसरे की समझ के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए दे विल वर्क. नाउ स्टूडेंट, लेट्स फोकस ऑन द सेकेंड प्रिंसिपल. थर्ड पॉइंट इज मेंटल रिवॉल्यूशन. नाउ हियर इन दिस पॉइंट the attitude of employees and management are important. मैनेजमेंट को हमेशा एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के तरफ सोचना चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ को हमेशा मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए सोचना चाहिए. नाउ ऑब्वियसली स्टूडेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो फोकस करेगा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सेट टाइम पर अचीव हो जाए. सो एम्प्लॉयज़ को उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा. एंड हियर ऑल्सो the main attitude or the main aptitude is given to the cooperation between management and the employees. इन दोनों के बीच में हमें हमेशा ये फोकस करना पड़ेगा कि इनका जो रिलेशनशिप है
वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप के तरह आगे बढ़ते जाए. Let's focus on the fourth one, that is cooperation and not individualism. Now here cooperation means what? We have to cooperate with each other. Now employees and management, they have to cooperate with each other. Management will not only think about themselves and they have to give priority to their employees. Same with the employees, that management, employees should give priority to the management and the objectives of the management rather than their individual interest. Now let's move on to fifth point, that is division of responsibility. Now student, this division of responsibility is somehow related to division of work, जो हमने already हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल के फर्स्ट पॉइंट में देखा था. यहाँ पर सिर्फ काम को डिवाइड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है और एम्प्लॉयज़ के बीच में रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया जा रहा है, सो दैट एवरी एम्प्लॉयज़ विल गोइंग टू पुट focus on the work what they are doing. The last point is development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. Every employee has the tendency to work efficiently in an organization. Organization वाला यही चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉई है वो अपना 100% दे. तो वो एम्प्लॉई अपना 100% कब देगा? जब आप उसको फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करोगे. सेम आपको एज एन एम्प्लॉय फेयर रेम्यूनरेशन कब मिलेगा? व्हेन यू विल बी एफिशिएंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन और आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हो. सो ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फोकसिंग ऑन द cordial relationship of employees and management. Now student, in this answer we are only focusing on 6 point. Same जैसे हमने हेनरी फियोल के 6 पॉइंट पे फोकस किया था, यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 पॉइंट ही है. Now this question again I am repeating, it will not going to come for 8 marks. For 4 to 5 marks, 6 points are enough. You only have to remember that if the question arise like explain any 5 principles of management, that time you have choice. Either you can write Henry Fayol का principle or you can write scientific management का principle. But if specific questions will be there like explain any 5 principles of modern management, that time आपको वो जो 5 या 6 प्रिंसिपल है वो लिखना है. और अगर क्वेश्चन आया है that explain any 5 principles of scientific management, that time you have to write these points only. If you are not writing and if you are getting confused कि हेनरी फियोल का पूछा है and if you are writing F.W. टेलर का point, then you will not going to get marks. Functions of management. Now student, what do you mean by management? Again a quick recap about management. Management क्या है? अगर हम उसका definition देखेंगे तो management is nothing but it is an art of getting things done through others. यहाँ पर हमें दूसरों से काम करवा कर लेना है. बेसिकली जो मैनेजर होता है उसका काम यही होता है कि उसको बाकी के एम्प्लॉयज से उसके जो भी टास्क है वो कंप्लीट करवा कर लेना है. तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज प्लानिंग, उसके ऊपर फोकस करते हैं. नाउ स्टूडेंट, हमें ये भी पता है कि हम अगर एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक या फिर एक सिंपल सा चीज़ भी करना चाहते हैं, सो वी हैव टू मेक अ प्लान फॉर दैट थिंग. से फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया है कि आपको कॉलेज बंक करना है, तो उसके लिए आप पहले से 1 day प्रायर यू विल मेक अ प्लान विथ योर फ्रेंड्स कि वो जा रहे हैं क्या कॉलेज, एंड देन यू विल गोइंग टू कन्विंस देम कि आज हम कॉलेज या फिर कल हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम कॉलेज के बदले यहाँ जा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं. यहाँ पर वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पर आप ऑन द स्पॉट प्लानिंग भी कर सकते हो, बट जो प्लानिंग आपको ज़्यादा रिजल्ट या बेटर रिजल्ट देगा वो ये होगा कि आपको प्लानिंग जो है वो बेसिकली एक स्टार्टिंग थिंग है या स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो आपको पहले से ही करना चाहिए. तो यहाँ पर हर एक मैनेजर उसे जो काम करना है वो पहले से ही डिसाइड करेगा कि उसको प्लान में कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. नाउ हियर मैनेजमेंट ने डिसाइड तो कर लिया है या मैनेजर हैव मेड अ प्लान कि उसको किस तरीके से काम करना है, और वो काम को करने के लिए उसे जो भी रिसोर्सेस लगेगा वो यहाँ पर सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर वो रिसोर्स अरेंज करवाएगा. नाउ रिसोर्स इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेस,
फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज। यहाँ पर आफ्टर अरेंजिंग द रिसोर्सेज, यहाँ पर मैनेजर को ये देखना पड़ेगा कि वो रिसोर्सेज को लेकर काम कौन करने वाला है, एंड सो फॉर दैट अब वो थर्ड फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज स्टाफिंग। इस फंक्शन में वो फोकस करेगा कि उसके एम्प्लॉयज़ कौन होंगे। बेसिकली यहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करेगा, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगा, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगा कि एम्प्लॉय को वो ऑर्गेनाइजिंग में या फिर रिसोर्सेज यूज़ कर कैसे काम करना है। एंड इन दिस पॉइंट ओनली या इन दिस फंक्शन ओनली मैनेजमेंट एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ फंक्शन, दैट इज डायरेक्टिंग। आफ्टर स्टाफिंग एम्प्लॉयज़ तो अब हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, वी हैव रिसोर्सेस ऑल्सो, और हमारे पास प्लान भी रेडी है। यहाँ पर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा कि एम्प्लॉय को एज पर द प्लान और एज पर द रिसोर्सेस किस तरीके से काम करना है। नाउ हियर एम्प्लॉयज़ विल ओनली going to work as per the directions given by the manager. The next function is coordinating. In an every organization, जैसे आपको भी पता रहेगा कि organization में there are so many departments. वो departments में production department होता है, sales department होता है, finance department होता है, accounts department होता है. Now ये सारे डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है। से फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ऑब्वियसली विदाउट मोबाइल फ़ोन आपका ज़िंदगी नहीं है। वी आर फोकसिंग ऑन अ कंपनी जो एक मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ सपोज इफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ मेड 6000 यूनिट्स ऑफ दैट मोबाइल फ़ोन, बट सेल्स डिपार्टमेंट को उसका आइडिया ही नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है या 6000 यूनिट किया है, तो मे बी सेल्स डिपार्टमेंट को उनका वर्क ऑन करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स, फाइनेंस, अकाउंट्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। बेसिकली ये लास्ट फंक्शन के लिए वी हैव टू मूव ऑन टू द फर्स्ट फंक्शन, या फिर हम लोगों को थोड़ा फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना पड़ेगा एंड वी हैव टू सी कि हमने जैसे स्टैंडर्ड सेट किए थे प्लानिंग में उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन का। वी हैव डिसाइडेड कि हम इन अ मंथ वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस 6000 यूनिट्स ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। सो वी हैव टू चेक आफ्टर अ मंथ कि हमने सच में 6000 यूनिट प्रोड्यूस किया है या नहीं किया है। अगर वो हुआ है देन दैट मीन्स हम लोग जो फ्लो में या जो हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ही प्रॉपरली जा रहा है, हमारा मैनेजर इज एफिशिएंट, एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट। बट अगर आपने 6000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया है तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉजेज एंड द रीजंस कि ये 6000 यूनिट प्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस। एंड इस तरीके से हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ हायरार्की फॉलो। नाउ स्टूडेंट, ये चैप्टर में अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो बेसिकली देयर आर टोटल 6 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस के 10 to 12 पॉइंट्स दिए गए हैं। बट यहाँ पर हमने इसे कट शॉर्ट किया है एंड हमने ये जो 7 कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में प्लानिंग पूछा तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग पूछा तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, स्टाफिंग पूछा तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो। इट इज़ बेसिकली आप हर एक फंक्शंस के लिए ये सारे कॉमन पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नाउ ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग है, ये क्वेश्चन समटाइम्स इट में आस्क फॉर 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स के लिए भी आया हुआ है। अगर हम 4 मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो 5 पॉइंट्स आर इनफ, अगर हम 5 मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो 6 पॉइंट्स आर इनफ, और अगर हम 8 मार्क्स के लिए बात करेंगे 7 पॉइंट्स आर इनफ। नाउ लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हम कौन से भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें, चाहे वो प्लानिंग हो,
ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, हर एक फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करता रहता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही ट्राई करेगा कि उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे। तो अगर एक मैनेजर ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या जो भी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली प्लान आउट किए रहेंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, दैट इज इम्प्रूव्स गुडविल। नाउ गुडविल इज नथिंग बट रेप्यूटेशन। आपने ऑलरेडी बहुत सारे रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने हुए रहेंगे, जैसे हमारे पास गोदरेज हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। नाउ हियर हाउ दे हैव अर्न्ड दिस नेम, ऑब्वियसली ये हर पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंटली काम करना है, अगर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह सब अच्छे से पता है तो वो अपना 100% देगा। वो अगर अपना 100% दे रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो इट विल बी ईजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि उनका जो सेट ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर सकते हैं। नाउ हियर गुडविल के वजह से जैसे मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, उनका ऑलरेडी एक रेपुटेशन मार्केट में बन चुका है। और इसी तरीके से एफिशिएंसी इंक्रीजिंग और गुडविल जो हम बढ़ा रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर रहे हैं उसके वजह से मार्केट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Now student, here resources include human resources, financial resources, physical resources and other resources. Let's focus on financial resources जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में। Now in an organization जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं और मैनेज करने वाले जो होते हैं दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर डिफरेंट पर्सन। Now here manager has to take care द फंड्स गिवन बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट इसीलिए ही किया है ताकि उसका पैसा सेफ रहे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द फंड्स। दे हैव टू मेक श्योर कि इन्वेस्टर का पैसा कहीं बिना मतलब के यूज़ ना किया जाए। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नाउ स्टूडेंट, अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर है तो भी आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। अगर आपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली अरेंज किया है, दैट मीन्स आपने ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से किया है, तो भी आप इजीली आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। इसी तरीके से प्रॉपर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर हेल्पिंग टू गेट द ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि उनका जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन तक चले, दैट टू विद मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जो ऊपर के अगेन हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, जैसे हो गया एफिशिएंट एम्प्लॉयज, गुडविल और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। Let's move on to fifth functions of management, that is it facilitates motivation to employees. Now student, here it is important for the manager to motivate their employees. अगर employees motivated नहीं रहेंगे तो वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे और उनका efficiency level जो है वो धीरे धीरे गिरता जाएगा। Now how a manager can motivate the employees? यहाँ पर जो hardworking employees है यहाँ पर हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स। वो इंसेंटिव्स में भी मॉनिटरी टर्म्स में हो सकता है, दैट मीन्स अगर आपने ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव किया यू विल गेट एक्स्ट्रा कमीशन ऑन दैट। या फिर वो आपको नॉन मॉनिटरी वे से भी मोटिवेट कर सकते हैं बाय गिविंग देम सम रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज और मे बी सम पैकेजेस टू रोम अराउंड विथ योर फैमिलीज। इन दिस वे अ मैनेजर कैन कीप द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड। द सिक्स्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन decision making. All functions of management helps the manager to take a right decision. It is the duty of the manager or the sole responsibility of the manager to take right decision at the right time. अगर मैनेजर ने right time पे right decision नहीं लिया या मे बी उसने डिसीजन राइट लिया है बट वो राइट टाइम पे नहीं लिया है तो वो पूरा अफेक्ट उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दिखेगा। यहाँ पर मैनेजर्स ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के अकॉर्डिंगली या उसको ध्यान में रख के राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। मैनेजर्स यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेगा कि उसके सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर चलते रहे।
से फॉर एग्जाम्पल आपने प्लानिंग तो कर दिया बट यू हैव नॉट अरेंज द रिसोर्सेज, तो आपके आगे के कोई फंक्शंस प्रॉपरली होने वाले नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली. सो इन दिस वे स्टूडेंट, ये जो हमने 7 पॉइंट्स किए हुए हैं ये बेसिकली कॉमन पॉइंट है. ये कॉमन आंसर आप लिख सकते हो आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग के आंसर में. आपको जो टेक्स्ट बुक में 10 to 12 पॉइंट्स अलग अलग दिए हुए हैं वो आपको करने का ज़रूरत नहीं है. Marketing. Before starting with the topic, let's understand what is marketing. The basic definition or basic meaning of marketing is that the activity of showing and advertising a company's product in the best possible way. Here, with the help of marketing, company जो है वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करता है, वो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाता है. Now let's start with importance of marketing. Before starting with this answer, I just wanted to let you know that ये जो importance of marketing का आंसर है, ये आंसर आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है. बट 8 मार्क्स के लिए जब ये आंसर आएगा, so the specific questions will be importance of marketing to the society and importance of marketing to the firm in this way, or maybe importance of marketing to the society and consumer, or maybe importance of marketing to the firm and the कंज्यूमर. सो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ये एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएगा तो सिर्फ एक स्पेसिफिक सोसाइटी, फर्म या कंज्यूमर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो कॉम्बिनेशन में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी. इन दिस द फर्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Now the people who are living in a society, with the help of marketing, they can improve their standard of living. With the help of marketing, people will come to know about the quality of the product, and in this way they can increase their standard of living. Nowadays people are relying on good quality product. लोगों को ज़्यादा प्राइस में अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट भी चलता है. पीपल हैव देयर मेंटालिटी कि हमें कम पैसे में लो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए. सो इन दिस वे वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सकते हैं. The second importance of marketing to the society is that it provides employment opportunities to numerous people. मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग करना इतना ही लिमिटेड नहीं है. इट इन्वॉल्व्स सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस. हर एक चीज़ मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ पर इन सारे फील्ड में अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग. द थर्ड पॉइंट इज कंज्यूमर अवेयरनेस. जब किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाता है तो वो एक तरीके से कंज्यूमर को अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है. से फॉर एग्जांपल, अगर हम टीवी एड में किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइजिंग देखते हैं या उसका मार्केटिंग देखते हैं, तो उसे हमें ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हम और ज़्यादा एनग्रेड्स से कैसे दिख सकते हैं. तो यहाँ पर कंज्यूमर को विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज और पूरा अवेयरनेस मिलता है. द थर्ड पॉइंट इज इट मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. सोसाइटी में जो हम कंज्यूमर्स रहते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं. पीपल हैव एन नंबर ऑफ चॉइसेस इन सिमिलर गुड्स. यहाँ पर लोगों को विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग कौन सा प्रोडक्ट कैसा है उसके बारे में पता चलता है, और उसके वजह से लोगों का एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शैम्पू के बारे में बात करेंगे तो इनिशियली शैम्पूज़ में सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही लोगों ने लॉन्च किया था, जिसमें आप हेड एंड शोल्डर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो कि हेड एंड शोल्डर जो है वो एक ही तरफ से फोकस कर रहा था कि वो डैंड्रफ रिमूव कर रहा है. बट धीरे धीरे लोगों का एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया. स्मूथ एंड सिल्की बोलो या फिर एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये सारे चीज़ों के एक्सपेक्टेशन की तरफ से प्रोडक्ट में भी चेंजेस आ गए हैं, और कंपनीज़ ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बिकॉज ऑफ दिस अपने नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना स्टार्ट किया है. द सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज टू द फर्म. नाउ सी, बेसिकली फर्म ही है जो मार्केटिंग कर रहा है, और मार्केटिंग का फ़ायदा फर्म को किसी ना किसी तरीके से मिलते ही रहता है. विल मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इंक्रीजेस अवेयरनेस. फर्म को एक अवेयरनेस मिल जाता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है.
पीपल आर बाइंग दैट प्रोडक्ट और नॉट, लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या हो रहा है, ये सारे चीज़ें एक फर्म को उसका प्रोडक्ट के बारे में, उसके मार्केट के परफॉर्मेंस के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करके देता है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर, इट इंक्रीजेस सेल्स। हाउ मार्केटिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स। एक्चुअली देखा जाएगा तो नाउ डेज पीपल आर टोटली रिलाइंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। जिस प्रोडक्ट का मार्केटिंग ज़्यादा होता है उस प्रोडक्ट का सेल्स भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फर्म विल ऑलवेज गोइंग टू ट्राई कि वो अगर उनको अपना सेल्स बढ़ाना है तो उनको अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा और ज़्यादा अपीलिंग करना पड़ेगा, सो दैट कस्टमर कैन बाय दोस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट क्रिएट ट्रस्ट। मार्केटिंग इस तरीके से करना चाहिए कि लोगों के माइंड में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ एक ट्रस्ट क्रिएट हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। जब हम अमूल का ऐड देखते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट आ जाता है रिलेटेड टू अमूल प्रोडक्ट कि ये सारे प्रोडक्ट, मे बी वो मिल्क हो, मे बी वो कर्ड हो, मे बी वो आइसक्रीम हो, वो सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से मार्केट में बिकेंगे एंड पीपल हैव ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑल्सो। द लास्ट पॉइंट इज इट टैकल्स द competition also. How marketing is helping the organization to tackle the competition. Now there is not a single firm कि जिसका हम बोल सकते हैं कि उनका कोई competition नहीं है। Every firm, every organization, हर एक का अपना competitors available है। उनके प्रोडक्ट के बहुत सारे competitors एक एक प्रोडक्ट को competition देने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को बेटर प्रूव कर सकता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है टाइड ने अपने मार्केटिंग में रिन या ब्लू कलर का जो पैकेट दिखता है, सर्फ एक्सेल, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। टाइड जब मार्केट में आया था तो उसको एक ब्रांड अपना क्रिएट करना था और उसने अदर पाउडर्स के अकॉर्डिंगली अपना कलर, पैकेट का कलर वॉज कीपिंग ऑरेंज, ताकि वो उधर से ही डिस्टिंक्ट दिखे। और उन्होंने अपने ऐड में क्लियरली दिखाया था कि उनका जो प्रोडक्ट है इट इज़ बेटर देन अदर ब्लू पाउडर प्रोडक्ट्स। सो दिस वॉज द इम्पोर्टेंस टू द फर्म. Now let's move on to the importance of marketing to the consumer. Now here also we can see that as a customer of today's generation we are only relying on advertising. Though it is true that कि हमें अब advertising देखना पसंद नहीं है, but अगर हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन चाहिए we always prefer advertising और marketing of the product. तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दैट मार्केटिंग प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। मार्केटिंग क्या कर रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है। वो प्रोडक्ट कैसा है, कैसे यूज़ करना है, उसके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन कस्टमर को विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट के बारे में मिल जाता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रमोशन ही इस तरीके से किया जाता है कि हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन किस चीज़ के लिए है या किससे बना हुआ है। द सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन सिलेक्शन। अभी हमने ऊपर के पॉइंट में पढ़ा कि कंपटीशन तो हर जगह पर है, कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो उतने सारे ऑप्शन में से उसके लिए बेस्ट क्या है वो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर मार्केटिंग कस्टमर को हेल्प करता है टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। अभी आपका यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि अगर हम जब मार्केटिंग के लिए या एडवर्टाइजिंग में कोई देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने डेयरी मिल्क का ऐड देखा, तो वो डेयरी मिल्क के ऐड में वो चॉकलेट को इस तरीके से दिखाया जाता है कि अगर हमें नहीं भी खाना है तो समवेयर वी टेम्प्ट टू ईट दैट चॉकलेट एट दैट टाइम और हम वो चॉकलेट के लिए डिमांड करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर मार्केटिंग के वजह से हमें प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में भी जानकारी पता चलता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था अमूल के सारे प्रोडक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली वी कैन नॉट आस्क कि ये क्वालिटी वाला अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पर मार्केटिंग के हेल्प से कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में भी जानकारी मिलती है। द लास्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Nowadays businessman is having only one objective is to satisfy the customer. अगर कस्टमर सेटिस्फाई है वो आपका प्रोडक्ट फिर से परचेज करेगा, मे बी वो माउथ पब्लिसिटी करेगा और उसके वजह से दूसरे लोग भी आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। नाउ कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अगेन हम ऊपर के पॉइंट को थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है। उसके लिए हमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केटिंग रिसर्च में वी विल कम टू नो कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है
या नहीं है, उसको और कौन से एक्सपेक्टेशंस है हमारे प्रोडक्ट से, एंड इन दिस वे वी कैन गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. Functions of marketing. Before moving towards the main topic, let's just get a quick recap about marketing. What is marketing? Marketing is nothing but यहाँ पर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है, प्रोडक्ट के पहचान को लोगों तक पहुंचाया जाता है. So let's start with functions of marketing. Okay, so in this functions of marketing, our first point is marketing research. यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च करके कंपनी ये फाइंड आउट कर सकता है कि एग्जैक्टली जो मार्केट में कस्टमर्स है उसको उसके प्रोडक्ट से क्या चाहिए, कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है, वाई कस्टमर वांट टू बाय दोज प्रोडक्ट, कस्टमर को कितने प्राइस में वो प्रोडक्ट खरीदना है. ये सारी चीज़ें हम मार्केटिंग रिसर्च में फाइंड आउट कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर इफ़ वी आर चार्जिंग अ पर्टिकुलर प्राइस, तो वो प्राइस में कस्टमर वो प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है या नहीं है. अगर किसी कंपनी को अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके पहले हमेशा कंपनी मार्केटिंग रिसर्च करता है. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज अ वॉच कंपनी इज देयर जो पहले नॉर्मल एक वॉच बना रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब लोगों का एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुका है, स्मार्ट वॉच ने मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस दिखाया हुआ है. हर एक वॉच कंपनी यही ट्राई करेगी कि कस्टमर को कितने प्राइस में वो वॉच चाहिए. तो यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च करके कंपनी ये फाइंड आउट कर सकती है कि कस्टमर को वो स्मार्ट वॉच कितने प्राइस में चाहिए, कब चाहिए, उसका यूजेस क्या है. ये सारा चीज़ उनको यहाँ पर फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पॉइंट, दैट इज बाइंग एंड असेंबलिंग. यहाँ पर मार्केटिंग कंपनी को हेल्प करता है टू बाय डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, और फिर वो सारे रॉ मटेरियल असेंबल करके दे कैन मेक अ प्रोडक्ट. यहाँ पर हम एक बाईसाइकिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमें बाईसाइकिल बनाना है, सो फॉर दैट वी रिक्वायर रॉ मटेरियल्स, या फिर जो अदर जो बाईसाइकिल के पार्ट्स होते हैं वो हमें एक जगह पर लाकर असेंबल करना रहेगा, एंड देन वी कैन मेक वन प्रोडक्ट आउट ऑफ इट. द थर्ड पॉइंट इज मार्केट प्लानिंग. यहाँ पर मार्केट प्लानिंग में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं तो उसे लॉन्च करने के पीछे हमारा बेसिक प्लानिंग क्या है. वी हैव टू सी कि जब हम वो लॉन्च कर रहे हैं वो टाइम पीरियड राइट है या नहीं है, राइट प्राइस में हम उसे लॉन्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो ऑल दीज थिंग्स हमें इसके लिए प्रॉपर मार्केट प्लानिंग करना पड़ेगा. द फोर्थ वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. यहाँ पर अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, बट वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हो रहा है, या फिर कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा. उसके लिए हम फिर से मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे अमूल आइसक्रीम की, तो यहाँ पर जब अमूल ने आइसक्रीम लॉन्च किया था तो उनका बेसिक फ्लेवर वॉज वेनीला, लेकिन अगर अभी हम देखेंगे तो एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड हो चुके हैं. The next point is packaging and labeling. Marketing also helps in packaging and labeling of a product. जब हम किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमें पैकेजिंग को इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा दैट कस्टमर विल गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मेनी चॉकलेट्स, जिसमें एक फेरेरो रोशर, ये चॉकलेट का अगर हम पैकेजिंग देखेंगे, इट इज गुड फॉर गिफ्टिंग टू समवन एल्स, हमें वो गिफ्ट देने में अच्छा लगता है. सो पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स पैकेजिंग ऑल्सो. यहाँ पर पैकेजिंग के साथ में लेबलिंग लगाना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउअडेज कंज्यूमर आर वेरी मच अवेयर, और वो अपने राइट्स को अच्छे तरीके से जानता है, इसीलिए वो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट क्या है, उसका MRP, उसका पैकेज डेट ऑफ एक्सपायरी, एवरीथिंग शुड बी देयर इन द लेबलिंग. द नेक्स्ट वन इज ब्रांडिंग. ब्रांड इज नथिंग बट गिविंग अ डिस्टिंक्ट नेम टू द प्रोडक्ट. यहाँ पर ब्रांडिंग के हेल्प से बहुत सारे कंपनीज मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं. यहाँ पर हम 2-3 ब्रांड्स के नाम ले सकते हैं, जैसे कि टाटा हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया, या टाइटन हो गया, या फिर ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज वी आर नोइंग, और हम वो पर्टिकुलर ब्रांड को सिलेक्ट कर ही अपना प्रोडक्ट चूज करने का डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस. Now this is something new. फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में पहले कस्टमर सपोर्ट सर्विस वाज नॉट देयर, लेकिन अगर अभी हम देखेंगे तो कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और कस्टमर को जब रिक्वायरमेंट रहेगा तब हमें उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए. बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है दे हैव स्टार्टेड यूजिंग AI. जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्राई ऐप की,
तो वहाँ पर आपको अगर एज अ कस्टमर कुछ क्वेरीज है तो आप उनके AI के थ्रू अपना क्वेश्चंस पुट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द रिवर्ट और यू कैन गेट द आंसर विद इन सेकेंड्स. सो इन दिस वे मार्केटिंग जो है वो कस्टमर सर्विस सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है. द नेक्स्ट वन इज प्रमोशनल चैनल्स. आप आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग कौन से प्रमोशनल चैनल को यूज करके प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नाउअडेज many companies they are using TV media for their promotional channels rather than giving them advertisement in the newspaper because people are not in the fond of newspaper. लोग जो है आजकल ज़्यादा करके टीवीज या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आजकल जो वेब सीरीज है या OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट पुट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. आपको अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आया तो मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. Marketing mix. Before moving towards the main topic, let us understand what is marketing mix. Basically, it is the combination of 4 P's plus 3 P's. The 4 P's include product, price, place and promotion, and the 3 P's include people, process and physical environment. In the year 1960, E. Jerome McCarthy has introduced 4 P's, but as the developmental changes took place, the 3 P's were added. Let's start with the first P, that is product. Now product is something which may be in the form of tangible or maybe in the form of intangible. If we are talking about tangible, it is something like things or goods or product, and if we are talking about intangible, it is considered as services provided to the customer. हमारे जो प्रोडक्ट है वो tangible या intangible फॉर्म में हो सकते हैं. यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है जो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. द सेकेंड पॉइंट इज प्राइस. बेसिकली प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदता है तो ही हैज टू पे दैट प्राइस. नाउ हियर कंपनी कैन नॉट चार्ज मोर प्राइसेस और लेस प्राइसेस, बिकॉज अगर कंपनी ने ज़्यादा प्राइस चार्ज किया तो वो कस्टमर के डिमांड के ऊपर अफेक्ट करेगा, और अगर कंपनी ने लेस प्राइस चार्ज किया तो वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट करेगा. नाउ हियर वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एयर कंडीशनर. अगर एयर कंडीशनर का प्राइसेस ज़्यादा है इन द मंथ ऑफ मे बी विंटर, पीपल विल नॉट गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट. और यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग समर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब AC के लिए डिमांड करते हैं तो हमें वो टाइम पे भी प्राइस को ज़्यादा हाई नहीं करना है. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज प्लेस. आपको आपके प्रोडक्ट के लिए राइट प्लेस सिलेक्ट करना ज़रूरी है. आपको आपका प्रोडक्ट कहाँ पर बेचना है, कौन सा राइट प्लेस है जहाँ पर आपको आपके प्रोडक्ट के लिए राइट कस्टमर मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेलिंग एनी मीट रिलेटेड प्रोडक्ट, तो आप वो प्रोडक्ट उस एरिया में बेच सकते हो जहाँ पर नॉन वेजिटेरियंस अवेलेबल है. अगर आपने रॉन्ग प्लेस सिलेक्ट किया, से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेलिंग non-vegetarian items in the areas where vegetarian people are living, might be your product will not going to be sold. The fourth point is promotion. Again, अगर आपको आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो you have to select right promotional channel. Nowadays एडवर्टाइजिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका इज प्रमोशनल चैनल. एंड आपका प्रमोशनल चैनल कैसा होना चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर. अगर आपके कंपनी का बजट बहुत अच्छा है, यू कैन गो फॉर टीवी, मीडिया, इस तरीके से आप आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो. बट इफ़ यू हैव लोअर बजट तो आप न्यूज़पेपर में इजीली आपका प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हो. द नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल फॉर whom you are making the product. आप किसके लिए आपका प्रोडक्ट बना रहे हो. Now people is not only considering the consumer but those who are directly or indirectly involved in your business. Maybe वो आपके employees हो सकते हैं, maybe वो आपके distributional channel वाले हो सकते हैं, maybe वो आपके agent हो सकते हैं. ये सारे लोगों को combine करके आप आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर जा सकते हो. The next point is प्रोसेस. नाउ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कि आप आपके प्रोडक्ट को बना कैसे रहे हो और आप आपके प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हो. जब आप आपके प्रोडक्ट को बना रहे हो उसका प्रोसेस क्या है, उसका मेथडोलॉजी क्या है और आप किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द लास्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट. नाउ हियर द बिजनेसमैन और द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू ट्राई कि वो अपना प्रोडक्ट जहाँ पर बेच रहे हैं
उनका शोरूम कैसा है, उनका लेआउट कैसा है, उनका प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है. नाउ हियर यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स. यहाँ पर अगर आप मैकडॉनल्ड्स का फिजिकल एनवायरनमेंट या उनके जो ब्रांड का आउटलेट देखोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर एवरीवेयर, और उसके साथ में उनका जो एम्बियंस है वो इस तरीके से है जहाँ पर लोग फ्रीली बैठकर डिस्कस कर दे कैन हैव देयर बर्गर्स. सो दिस वॉज द मार्केटिंग मिक्स. Here it is a direct question for 8 marks that you have to explain all 7 P's of marketing mix. You cannot skip a single P if it has been asked for 8 marks. लेकिन अगर 4 marks के लिए आया तो question is like that कि explain any 4 P's of marketing mix. Choice is yours. आपको जो 4 P easy लगेगा you can write. Rights of consumer. Before moving towards the right of consumer, हम पहले ये जानते हैं कि कंज्यूमर ये कौन है. बेसिकली आप, मैं, हम सब कंज्यूमर है. बट ये कंज्यूमर वर्ड आया कहाँ से है? दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंज्यूमर विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक. यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. एज अ कॉमर्स स्टूडेंट वी शुड नो दैट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड द कस्टमर. डिफरेंस ये है कि व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट हम सब कस्टमर्स होते हैं, बट एक्चुअल में जब हम वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है कंज्यूमर. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है आप ही उसे यूज़ करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो ऑलवेज रिमेंबर द वन हु बाइज द प्रोडक्ट इज द कस्टमर एंड द वन हु यूजेज द प्रोडक्ट इज द कंज्यूमर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द राइट्स ऑफ कंज्यूमर. व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ राइट फॉर द कस्टमर? बेसिकली नाउअडेज कस्टमर जो है उसे एज अ किंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, और यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 15 मार्च हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया और ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ इन द राइट्स ऑफ द कस्टमर्स बेसिकली देर आर 10 पॉइंट्स, लेकिन उसमें से ये जो 6 पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं ये है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू राइट ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज राइट टू सेफ्टी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन आवर डे टू डे लाइफ हम बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं. उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ होते हैं और बहुत सारे अनसेफ होते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ चार्जर. अगर आपने कभी देखा रहेगा तो चार्जर जो हम मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं उसके ऊपर डेंजर का साइन भी बना रहता है. उसके मैनुअल में हाउ टू यूज़ दैट चार्जर ये सब चीज़ दिखा रहता है. अगर आप मोबाइल फ़ोन को और चार्जर ऑन करके कॉल पे बात कर रहे हो इट इज़ डेंजरस. तो यहाँ पर कंज्यूमर हैव टू बी वेरी क्लियर कि उसका कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सेफ है, कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए अनसेफ है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन. यहाँ पर अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हो सो इट इज़ योर बेसिक राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर किसी मेडिसिन को खरीद रहे हो, किसी डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन रेकमेंड किया है, तो आप डॉक्टर को भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि ये मेडिसिन किस लिए है, कब लेना है, कितने मात्रा में लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए. नॉट ओनली दिस, हियर वी कैन गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फ़ोन. दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग अ मोबाइल फ़ोन हमें मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है. उसका बैटरी बैकअप कितना है, उसका कैमरा क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप प्रोडक्ट के पहले कस्टमर एज अ कस्टमर अपने जो शॉपकीपर है आप उसको पूछ सकते हो. Now let's move on to third point, that is right to choose. Nowadays there are many more competitions in the market. अगर हम नॉर्मल बिस्किट के बारे में भी बात करें तो आपको क्रीम बिस्किट्स में ही इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं. यू कैन सिलेक्ट एज पर योर चॉइस. नो वन विल गोइंग टू फोर्स यू. यहाँ पर आपको कोई भी शॉपकीपर फोर्स नहीं करेगा कि आप हाइड एंड सीक का ही बिस्किट लो या आप बॉर्बन का ही बिस्किट लो. इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. If you want to choose bourbon, you can choose that. If you want to choose hide and seek, आप वो भी परचेज कर सकते हो. The fourth point is right to consumer education. Now here consumer education doesn't mean कि आपको कंपनी वाले स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज में भेजेंगे to complete your education. यहाँ पर education का मतलब है that as a customer you should know your rights. आपकी अवेयरनेस के लिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट और बहुत सारे NGOs ने स्टार्ट किए हैं. इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है जागो ग्राहक जागो, जहाँ पर कस्टमर को अपने बेसिक राइट्स के बारे में जानकारी मिलती है. The next point is right to represent. Now suppose
अगर आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है या आपके किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। इट इज नॉट नीडेड कि आपको एडवोकेट हायर करना पड़ेगा या फिर आपको एडवोकेट या एलएलबी का डिग्री लेना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप खुद के लिए खुद का केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। द लास्ट वन इज द राइट टू बी हर्ड। नाउ हियर अगर आपका कोई कंप्लेन है देन you can easily convey your complaint to the shopkeeper or to the consumer court। आप consumer court में जाकर आप आपका complaint फाइल कर सकते हो। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आपको कोई अवॉइड करेगा, आपको कोई निग्लेक्ट करेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट स्टूडेंट वन मोर थिंग, जब हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं राइट टू बी हर्ड, तो यहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल्स में क्या लिखते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि कंज्यूमर को पूरा राइट है सामने वाले का सुनना। मतलब शॉपकीपर जो बोल रहा है वो सुनना है और शॉपकीपर को जो बोलना है वो कंज्यूमर सुनेगा। दिस इज नथिंग रिलेटेड टू दिस। यहाँ पर आपको सिर्फ आपके कंप्लेंट से लेना देना है। आप आपका कंप्लेंट कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लग रहा है कि ये प्रोडक्ट इज नॉट राइट या फिर आपको कोई डिफेक्टिव पीस मिला है तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट करके उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। सो दीज वर द बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर। दिस क्वेश्चन विल गोइंग टू कम फॉर 4 और 5 मार्क्स। आइदर इट विल गोइंग टू कम फॉर 4 मार्क्स या फिर आपको 5 मार्क के लिए आएगा एंड फॉर दैट 6 पॉइंट्स आर इनफ। Responsibilities of consumer. In the last session we have already seen the rights of consumer, जहाँ पर हमने देखा कि consumer ये लैटिन वर्ड कंज्यूमर से आया है जिसका मतलब है और मीनिंग है to eat or to drink. Now here we are starting with the responsibilities of the consumer. Basically consumer को rights तो दिए हैं बट कंज्यूमर का खुद का भी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सो दैट कोई भी उसके साथ में रॉन्ग बिहेवियर ना कर सके। आवर फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स। नाउ राइट्स जो हमने लास्ट सेशन में किया था, एनी टाइम कंज्यूमर कैन यूज एनी ऑफ द राइट्स एज पर द सिचुएशन। अगर उसे लग रहा है कि उसे कोई डिफेक्टिव चीज मिला है या डिफेक्टिव आइटम मिला है, ही कैन रिप्लेस इट। अगर उसको लग रहा है कि उसे किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन करना है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपना कंप्लेन भी कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल यू आर विजिटिंग अ आइसक्रीम पार्लर। जब आप आइसक्रीम ले रहे हो, आपके आइसक्रीम में आपको छोटा सा बाल मिला, ठीक है। नाउ इट इज योर राइट कि आप उसको शॉपकीपर के पास से एक्सचेंज करवा कर ले लो। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉशियस कंज्यूमर। यहाँ पर आपका कॉशियसनेस ऑल्सो मैटर करता है। You should be cautious about the product which you are buying. Say for example, अगर आप किसी क्लोथ का परचेस कर रहे हो तो आपको वो क्लोथ का मटेरियल क्या है, उसका प्राइस कितना है, वो कौन से ब्रांड का है, उसका कलर कैसा है, वो फेड हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर कॉशियस होना ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अगर आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट करना है तो आप कर सकते हो। रिसेंटली वी हैव सीन दैट बहुत सारे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने पैकेजिंग के ऊपर नेट वेट कुछ और लिखा था बट उसका एक्चुअल वेट कुछ और रहता था। यहाँ पर देयर इज अ पर्सन, आई डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज हिज नेम, बट उसने सोशल मीडिया पर जाकर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर कंप्लेंट फाइल किया था ओनली फॉर 20 लेस ग्राम के लिए। मतलब नेट पैकिंग पे अगर लिखा है 450 ग्राम तो उसका एक्चुअल वेट वॉज ओनली 430 ग्राम। तो वो जो 20 ग्राम कम था उसके ऊपर वो पर्टिकुलर पर्सन ने कंप्लेंट फाइल किया और उसको उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन भी मिला। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी कॉशियस। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वालिटी कॉन्शियसनेस इज समथिंग जो अभी अभी एमर्ज हुआ है। पहले के टाइम पे पीपल वेयर लाइक कि अगर सस्ते में मिल रहा है तो चलेगा, लेकिन आजकल लोगों का माइंडसेट ये हो चुका है कि ज्यादा प्राइस पे किया तो चलेगा बट वी वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो पीपल आर मोस्टली कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लोगों को ज्यादा टिकने वाला ही प्रोडक्ट चाहिए है एंड पीपल आर रेडी टू पे मोर फॉर द गुड क्वालिटी। द फिफ्थ वन इज beware of exaggerated advertisement. Nowadays people are more relying on advertising. लोग एडवर्टाइजिंग देखकर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है then also people are buying that product. Here we can give example of Fair and Handsome cream. वहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है if you are using Fair and Handsome का क्रीम और मे बी द फेस वॉश you will become a शाहरुख खान, but in practical life it is not at all possible. So यहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा सा अवेयरनेस रखना पड़ेगा।
इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी कि वो राइट टाइप का एडवर्टाइजमेंट करे. नाउ हियर वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज ऑफ बॉर्नवीटा. अगर आप बॉर्नवीटा का ऐड देखोगे तो उनके टैगलाइन में लिखा हुआ है दैट दे आर प्रिपेयरिंग यू, दे आर तैयारी जीत की. दे आर ओनली प्रिपेयरिंग यू, दे आर नॉट सेइंग कि आप बॉर्नवीटा पियो और आप जीत जाओगे. इट इज नॉट लाइक दैट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू डिमांड फॉर द इनवॉइस. आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसका बिल आपके पास होना जरूरी है. और अगर आपके प्रोडक्ट के साथ में गारंटी या वारंटी कार्ड मिलता है तो भी आपको चेक करना पड़ेगा. हियर आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ सफारी बैग या एनी अदर ब्रांडेड बैग्स. वहां पर आपको गारंटी वारंटी कार्ड मिलता है कि आपको ये बैग का 1 ईयर का गारंटी है, उसके व्हील का 5 ईयर का गारंटी है. तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आप आपके प्रोडक्ट के साथ में अगर कोई गारंटी या वारंटी कार्ड अवेलेबल है तो आपको उसे सामने से डिमांड करना चाहिए. हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. इनिशियल डेज में लोगों का जब अवेयरनेस नहीं था तो उनको फिजिकल फॉर्मेट में मतलब पेपर फॉर्मेट में बिलिंग मिलता था. बट नाउ डेज अगर आप बहुत बड़े बड़े शोरूम्स में जाओगे तो डायरेक्टली आपका जो बिल है वो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है. और इस तरीके से हम थोड़ा एनवायरनमेंट की तरफ भी सतर्क रह रहे हैं. एंड इट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीटिंग हो सकता है दैट जो अभी नया ट्रेंड आया है कि मोबाइल नंबर पे आपका बिल आएगा. इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहां पर काउंटर पे खड़े रहकर चेक करो कि आपको आपका बिल रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. सो दीज वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर दो ही इज द किंग ऑफ द मार्केट, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर उसने ये फुलफिल किया तो ही विल बी अ अवेयरफुल कस्टमर. थैंक यू. Responsibility of business organization towards consumer. Basically business organization से related there are 4 to 5 interest group जो business organization से directly और indirectly related है, जिसमें से सबसे first group is consumer because businessman का पूरा business consumer के ऊपर ही depend करता है. तो towards consumer there are certain responsibility of the businessman to fulfill. Now let's move on to the first रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. हर बिजनेसमैन को हमेशा यही ट्राई करना चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए बना रहा है वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ वॉच तो वहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे टाइटन हुआ, फास्ट ट्रैक हुआ, दे आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और गुड क्वालिटी वॉच जो सालों साल चलता है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट दैट इज फेयर प्राइजेस. अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे वॉचेस के, उसके कंपैरिजन में वी कैन टेक कि यहाँ पर हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का फेयर प्राइस चार्ज करता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फेयर प्राइसेस? फेयर मतलब रीजनेबल. ज़्यादा भी हाई प्रॉफिट नहीं दिखाना है, ज़्यादा भी लो प्रॉफिट नहीं दिखाना है. यहाँ पे कंपनी हमेशा अपना ओवरहेड्स कॉस्ट कैलकुलेट करके प्रॉफिट ऐड करके प्राइसेस चार्ज करेगा. नाउ हियर द थर्ड पॉइंट इज कस्टमर्स सेफ्टी. यहाँ पर हम बोल सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर के लिए सेफ होना चाहिए. बेसिकली कस्टमर सेफ्टी का क्वेश्चन अराइज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है जो कस्टमर के लिए सेफ नहीं होते हैं. इन दिस वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम क्लीनर. अगर आपको वैक्यूम क्लीनर प्रॉपरली यूज करने आता है देन इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपने वैक्यूम क्लीनर के टाइम पे डस्टिंग के लिए रॉन्ग ब्रश सिलेक्ट किया तो मे बी आपका पूरा डस्टिंग खराब हो सकता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग. नाउ स्टूडेंट, हियर एवरी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट गिव मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट. यहाँ पर उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट उसके ही बेसिस पर खरा उतरना चाहिए. जैसे कि अगर हमने देखा है कि yippee सनफीस्ट का जो नूडल है दे आर शोइंग इन देयर एड कि ये नॉन स्टिकी है. तो अगर आप सच में चाहिए तो यू कैन मेक इट एंड यू कैन टेस्ट इट कि यहाँ पर ये जो yippee नूडल है इट इज अ नॉन स्टिकी नूडल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अटेंड कंप्लेंट्स. यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स फ्रॉम द कस्टमर. उन्हें कस्टमर के कंप्लेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए. कस्टमर में कंप्लेंट अबाउट डिफरेंट फीचर्स और मे बी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर कंप्लेंट कर सकता है कस्टमर. उसके ऊपर उन्हें कस्टमर को अटेंड करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. द लास्ट पॉइंट इज रेगुलर सप्लाई.
यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अगर उसे डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखना है तो उसे रेगुलर बेसिस में गुड्स का सप्लाई करना चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने कभी भी होर्डिंग्स करना नहीं है प्रोडक्ट का, बिकॉज अगर उन्होंने प्रोडक्ट को होर्डिंग किया एंड वो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करने का सोच रहे हैं तो इट विल क्रिएट बैड इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर में स्विच टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस में आपको कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते रहना चाहिए। सो दीज वर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेसमैन टूवर्ड्स कंज्यूमर, और बिजनेसमैन को ये ट्राई करना है कि वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके। थैंक यू। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉइज। इन द लास्ट सेशन हमने देखा था कि टूवर्ड्स कंज्यूमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे। हमारे आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, दोज हु आर द एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उनके टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फेयर रेम्यूनरेशन। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ये ट्राई करना चाहिए कि उसके लिए जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो उनको राइट सैलरी प्रोवाइड करे। यहाँ पर एम्प्लॉइज का डेजिग्नेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनके स्किल्स, उनका नॉलेज और उनका क्वालिफिकेशन देखकर एम्प्लॉय का सैलरी डिसाइड किया जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज गुड वर्किंग कंडीशन। यहाँ पर हमें एम्प्लॉइज को एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए। एन एम्प्लॉई इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर गुड सैनिटेशन फैसिलिटी, वेंटिलेशन फैसिलिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग विल बी देयर फॉर द एम्प्लॉइज। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेशर्स। यहाँ पर बिजनेसमैन ने हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज या जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट जहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ वर्कर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वहाँ पर मशीन का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए। विद दिस वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कि शूज, हेलमेट, गॉगल्स, उसके बाद में हैंड ग्लोव्स, एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड for the health concern of the employees. The next point is education and training. यहाँ पर टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली इट इज द रूल ऑफ द गवर्नमेंट देन इन एवरी 6 मंथ हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। नॉट ओनली दिस, मेनी कंपनीज दे आर ऑफरिंग सम कोर्सेज रिलेटेड टू देयर कंपनी, और वो ऑर्गेनाइजेशन वाले एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं टू गेट द एजुकेशन एंड टू गेट मोर ट्रेन्ड टू डू अ वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज लुक आफ्टर दोज एम्प्लॉइज हु आर परफॉर्मिंग वेल, उनको और ज़्यादा ग्रोथ करने का चांसेस मिलना चाहिए। यहाँ पर टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज का प्रमोशन और उनको अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एम्प्लॉइज को हम राइट टाइम पे राइट प्रमोशंस देते जाएंगे तो अदर एम्प्लॉइज विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड एंड दे विल ऑल्सो गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली। द लास्ट पॉइंट इज प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंस इज नथिंग बट कंप्लेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का कोई कंप्लेंट है या फिर किसी एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको तुरंत रिजॉल्व करना या उसके ऊपर तुरंत करेक्टिव एक्शन लेना इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन। सो बेसिकली एम्प्लॉयज जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट है और इसीलिए उसके तरफ के जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने चाहिए। थैंक यू। Functions of warehouse. Now student, this question is might going to come for 8 marks or maybe for 4 to 5 marks. Before moving to the functions of a warehouse, let's understand what do you mean by warehouse. Warehouse क्या होता है? यहाँ पर warehouse is a place जहाँ पर businessman अपना excess goods या surplus goods store कर रखता है। यहाँ पर warehouse के definition में भी ये लिखा गया है that it is an establishment for the storage or accumulation of goods. ये warehouse बनाया ही इसीलिए है जहाँ पर businessman अपना goods को store कर सकता है। Now let's move on to the functions of warehouse, जिसमें first point लिखा हुआ है storage. Now student, स्टोरेज इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ वेयरहाउस। हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा है कि यहाँ पर हमने ये वेयरहाउस को एस्टैब्लिश क्यों किया है, टू स्टोर द गुड्स
or maybe the product. Now here let's take an example. अगर आपने मोबाइल फोन प्रोड्यूस किया है, your product is a mobile phone. Now here a company is producing mobile phone, almost I can say that at least 1000 यूनिट एक टाइम पे कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है. तो यहाँ पर एट द सेम टाइम कंपनी कैन नॉट सेल 1000 यूनिट्स. एक ही बार में कंपनी 1000 यूनिट बना भी रहा है और बेच भी रहा है, ये पॉसिबल नहीं है. तो जो अनसोल्ड यूनिट्स है या जो सरप्लस यूनिट्स कंपनी ने बनाया है, वो पूरा यूनिट्स या पूरा फोन जो है वो आपके वेयर हाउस में सेफ रहेगा. दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट पॉइंट, स्टोरेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्राइस स्टेबलाइजेशन. यहाँ पर हमने जैसे एग्जाम्पल में लिया हुआ है मोबाइल, उसका ही हमें प्राइस के बारे में बात करना है. हियर एवरी बिजनेसमैन विल ट्राई कि उसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहे, क्योंकि अगर प्राइस कम हुआ तो मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम होगा, और अगर प्राइस बढ़ा तो मे बी कस्टमर वो प्रोडक्ट डिमांड नहीं करेगा, और कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा है तो प्रोड्यूसर को फिर से प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम होगा. लेट्स सेट एन एग्जाम्पल हियर. सपोज अ कंपनी इज मेकिंग 1000 यूनिट ऑफ अ मोबाइल फोन. उसमें से उसने थोड़ा यूनिट्स मार्केट में प्लेस कर दिया कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए. से फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का डिमांड आया है फॉर 500 यूनिट्स ऑफ मोबाइल. तो यहाँ पर कंपनी को वो टाइम पे 500 यूनिट्स को सप्लाई करना जरूरी है. अगर उन्होंने नहीं किया तो चांसेस आर देयर कि कंज्यूमर मे बी आपके अलावा आपके कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है. इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेसमैन कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस स्टेबल रखे, और उसके लिए उसको डिमांड और सप्लाई में स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज रिस्क बेयरिंग. नाउ हियर व्हेन द गुड्स और मे बी द प्रोडक्ट एक बार वेयरहाउस में चला गया है, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएगा. बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार मोबाइल फोन बन गया, सरप्लस मोबाइल फोन का जो भी यूनिट्स है वो सारा का सारा जा रहा है वेयरहाउस में, और वेयरहाउस कीपर जो है, नाउ इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेयरहाउस कीपर कि वो उसके गुड्स को या जो उसका मोबाइल फोन है उसको सेफली सिक्योर्डली अपने वेयरहाउस में रखे. तो यहाँ पर ये जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है बिजनेसमैन का, कि वंस ही हैज प्रोड्यूस द गुड्स, उसने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया है, गुड्स वेयरहाउस में है, जैसे जैसे डिमांड आएगा वैसे वैसे वो अपने गुड्स का सप्लाई करते रहेगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज financing. Now student, this financing is something related with the financial resources. यहाँ पर हम ये assume कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर है, वो कोई गुड्स बना रहा है. से फॉर एग्जाम्पल आई एम कंटिन्यूइंग विद दी मोबाइल फोन, कि उसने मोबाइल फोन बनाया है, उसने 1000 यूनिट ऑफ अ मोबाइल फोन मार्केट में दिया है, और जो एक्स्ट्रा 5000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन है वो उसने अपने वेयरहाउस में रखा है. नाउ ही इज इन नीड ऑफ फाइनेंस, उसको पैसे की जरूरत है, बट मे बी उसके 5000 जो मोबाइल फोन है वो बिके नहीं है, तो उसको ये टाइम पे लोन का जरूरत पड़ रहा है. एंड हियर ही कैन आस्क फॉर लोन आइदर फ्रॉम बैंक, आइदर फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम द वेयरहाउस कीपर. यहाँ पर वो वेयरहाउस कीपर से भी लोन उठा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो मोबाइल हेडफोन है या जो गुड्स है वो ऑलरेडी वो वेयरहाउस कीपर के ही गोडाउन में रखा हुआ है. अगर उसने लोन लेना है बैंक से, तो वो वेयरहाउस कीपर का सिग्नेचर लेकर लोन में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि इतने का प्रोडक्ट अभी मेरे वेयरहाउस में रखा है, और वो उतने का लोन के लिए अप्लाई कर सकता है. तो यहाँ पर फाइनेंसिंग ऑल्सो हेल्प्स द बिजनेसमैन टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, और फिर वो जो जितना और गुड्स बनाते जाएगा वो उतना गुड्स वेयरहाउस में एक्यूमुलेट करते जाएगा. Now let's move on to the fifth point, that is grading and packing. स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एट अ टाइम फैक्ट्री में पूरा नहीं बन पाता है, उनके लिए फर्दर प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का जरूरत पड़ता है. Now here let me give you one example of grading. आप सबने मोगरा बासमती राइस इसका बारे में सुना रहेगा. Now this मोगरा बासमती राइस comes into different grade. एक मिनी मोगरा बासमती आता है, एक मीडियम आता है, और एक प्योर बासमती राइस आता है. यहाँ पर आप जब गुड्स को बाइफरगेट करोगे एट अ टाइम व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द राइस, आप पूरा का पूरा चावल जब वेयरहाउस में लेकर आ रहे हो, आप वेयरहाउस में वो गुड्स को ग्रेड वाइज डिवाइड कर सकते हो. जो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे चावल के वो आप मोगरा बासमती में डाल सकते हो, जो मीडियम है वो टुकड़ा बासमती में डाल सकते हो, और जो प्रॉपर एक बासमती राइस आपको दिखेगा वो आप प्रॉपर बासमती राइस के अकॉर्डिंगली गुड्स को ग्रेड में डिवाइड कर सकते हो. इतना ही नहीं, आफ्टर ग्रेडिंग आप गुड्स का प्रॉपर पैकेजिंग भी वेयरहाउस में कर सकते हो. Now let's move on to the sixth point, that is transportation. Now
जब आप गुड्स का जब आप गुड्स को फैक्ट्री से वेयरहाउस में लेकर आ रहे हो, तो अगर आपका गुड्स बल्क क्वांटिटी में है तो यहाँ पर आपको वेयरहाउस कीपर वाला ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप आपके फैक्ट्री से वेयरहाउस में गुड्स लेकर आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप बल्क में गुड्स मार्केट में पहुंचाना चाह रहे हो, वहां पर भी वेयरहाउस कीपर वाला आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वेयरहाउस से गुड्स को मार्केट प्लेस में इजीली लेकर जा सकते हो। नाउ स्टूडेंट, इन दिस पॉइंट इट इज कंसिडर्ड एज कि अगर आपका वेयरहाउस कीपर के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th पॉइंट, दैट इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अभी तक हमने वेयरहाउस के बारे में जो भी पढ़ा, वहां पर हमने यही देखा था कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारा गुड्स है, मे बी राइस, मे बी मोबाइल फोन, ये सब हमें राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन को राइट प्राइस में प्रोवाइड करना चाहिए। सो यहाँ पर वेयरहाउस जो है वो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, इफ यू आर इन नीड ऑफ अ मोबाइल फोन, आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, आप शॉप में जा रहे हो, आपको वहां पर मोबाइल फोन मिल गया, दैट मीन्स व्हाट, द मैन्युफैक्चरर हैज गिवन यू द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम। सेम यहाँ पर आपको राइट प्लेस में भी वो प्रोडक्ट आपको मिल गया है। तो वेयरहाउस ये चीजों के ऊपर ध्यान रखता है कि वो राइट पर्सन को राइट टाइम पे, राइट प्लेस में और राइट प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करे। Now the last point is processing. Now there are certain goods जिसके ऊपर further processing करना जरूरी होता है। I have given you example of rice. Student, जब हम खेत से राइस लाता है, वो राइस के फॉर्म में नहीं होता है, हम उसे धान बोलते हैं और उसके ऊपर हमें उसको फर्दर पॉलिश करने का जरूरत रहता है। धान को इन इंग्लिश वी आर सेइंग पैडी। जो हम राइस को फार्मिंग से लेकर आए हैं उसे पैडी बोला जाता है और उसको फर्दर पॉलिश वेयरहाउस में किया जाता है और फिर वो राइस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम देयर आर सर्टेन फ्रूट्स, जैसे हम मैंगो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम मैंगो को तुरंत झाड़ से तोड़कर खाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, वो हम कोंकण साइड में ही देख सकते हैं, बट मैंगो इज अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम रॉ मैंगो को लेकर आते हैं, उसको हम वेयरहाउस में फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको राइप करते हैं और फिर हम वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सो दीज वेयर द फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। यहाँ पर अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट, इफ दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 8 मार्क्स तो आपको ये 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा विथ डेफिनेशन। थैंक यू। इंश्योरेंस। नाउ स्टूडेंट, इंश्योरेंस ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो आपने बहुत बार सुना रहेगा। इट इज यूज्ड by the businessmen and also by the general public like us. Now जो business services हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसमें इंश्योरेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। Now अंडर दिस इंश्योरेंस यहाँ पर आपको एक कंपलसरी आंसर आने वाला है, बट उसके पहले इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस के जो बेसिक टर्म्स है ये आपको पता रहने चाहिए। ओके स्टूडेंट, लेट्स लर्न द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। In a very short and simple sentence, it has been written that insurance is a means of protection from financial loss. Now, what do you mean by financial loss? It is nothing but जो हमें पैसे का हानि, पैसे का लॉस होने वाला है, उसको हमें इंश्योरेंस कंपनी कवर करके देता है। Now, this insurance is taken by businessmen as well as by the general public. लेकिन ये इंश्योरेंस क्या है और उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम पहले रीड आउट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टर्म लिखा हुआ है इंश्योर्ड। नाउ इंश्योर्ड इज द वन हु टेक्स द पॉलिसी, जिसे हम पॉलिसी होल्डर बोलते हैं। इंश्योर्ड इज द वन हु गिव्स द प्रपोजल टू द इंश्योरर, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी। ही इज द वन हु इज इंटरेस्टेड टू टेक द पॉलिसी। ही इज द वन हु वांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंश्योर्ड मतलब कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो आप या मैं हो सकते हैं जिसने पॉलिसी लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड टर्मिनोलॉजी, दैट इज इंश्योरर। इंश्योरर इज द वन हु गिव्स द पॉलिसी, जो पॉलिसी देने वाला है। यहाँ पर पॉलिसी देने वाला है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को अपने कंपनी का पॉलिसी देता है। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अभी एमर्ज्ड हुए हैं इन द रिसेंट ईयर एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द थर्ड टर्म इज प्रीमियम। यहाँ पर ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करता है। यहाँ पर इट इज अ पेमेंट डन बाय द इंश्योर्ड
to the insurer. Now why insured is giving payment to the insurer? Why he is paying premium? क्योंकि अगर वो प्रीमियम पे करेगा तो ही इंश्योरेंस कंपनी उसको आफ्टर लॉस कॉम्पेंसेशन का अमाउंट पे करेगा. नाउ इन दिस प्रीमियम में ऑप्शंस आर इन द हैंड्स ऑफ इंश्योर्ड. आइदर वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली प्रीमियम पे कर सकता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टर्म, दैट इज पॉलिसी. Policy is nothing but a written contract between the insured and the insurer. ये कॉन्ट्रैक्ट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं पॉलिसी में. यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर दे बोथ गो थ्रू विद दिस, एंड अगर उनको उनमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, सो दे कैन डिस्कस एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लेम. नाउ दिस इज नथिंग बट अ डिमांड made by the insured to get the compensation. आप यहाँ पर इंश्योर्ड या जो पॉलिसी होल्डर है वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेगा कि उसे इतना अमाउंट का कॉम्पेंसेशन चाहिए. लेकिन वो कॉम्पेंसेशन उसको मिलेगा कब? जब एक्चुअल में उसको लॉस होगा तब. इफ पॉलिसी होल्डर इज नॉट हैविंग एनी फाइनेंशियल लॉस तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता है. आफ्टर फाइनेंशियल लॉस ओनली वो इंश्योरेंस कंपनी के पास से अपना कॉम्पेंसेशन डिमांड करेगा. The next point is proposal. Now proposal in your word is proposing to सामने वाला party. Now here the policy holder is proposing insurance company. Basically it is nothing but a written request made by the insured to the insurer to give him or to issue a policy. The last one is the subject matter. It is the most important term in insurance, as you are taking insurance for the subject matter which may include life of the insured or the life of the dependent of the insured. The second one is property. You can take insurance for your property and for your business property also. After that, you can take policy for your cargo and ship. This is basically used by those who are using water transport while doing business. तो आप आपके कार्गो और आपके शिप के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हो. एंड द लास्ट वन इज गुड्स और मे बी द प्रोडक्ट जो बिजनेसमैन बना रहा है उसके लिए यहाँ पर वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है. सो दीज वर द बेसिक टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस और इसके ही बेसिस में हम आगे के आंसर्स को गो थ्रू करेंगे.